Hello my dear student, today in this lecture video we are going to start a next topic, that is area of right angle triangle of standard 7th lesson number 12, perimeter and area. In previous lecture video we discussed about the area and perimeter of a square and even a rectangle also. Okay, now we are going to discuss about the right angle triangle area. So as you can see in your textbook, see how we can form the area of rectangle that was given to you. So I'm going to explain here. Suppose I'm taking a one rectangle, and you know according to the properties of rectangle, opposite sides are equal and each angles are how much degree? 90 degree. Suppose this rectangle figure, if I'm going to divide into two equal parts, so what happened here? If you are going to see, so what happened? Area of a rectangle is equal to what we mean? 2 times, because this area I'm going to cut into two part. So ये एक एरिया और ये एक एरिया, so 2 times that is area of एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. बिकॉज वी नो दैट इस टाइप का फिगर दिया गया है, तो आपको पता होगा ये फिगर का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट स्टूडेंट. सो नाउ वी कैन सी दैट, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल एरिया ऑफ rectangle. We know according to the figure, suppose if I'm writing here P and if I'm going to write here Q, so here you can see in the rectangle, this we call as a length and this we call as a base, right? इसे क्या कहते हैं? बेस, एंड इसे कहते हैं हम लेंथ. सो वी नो दैट एरिया ऑफ rectangle from this figure we can say that length into breadth. लेंथ हियर क्या दिया हुआ है? आपका Q दिया है, और ब्रेथ क्या दिया हुआ है? आपका P दिया है, और वी कैन राइट P इंटू Q ऑल्सो. ओके, सो वी कैन राइट दैट therefore put the value of this area of rectangle in this equation. So what you will get, or you can write P into Q or Q into P anytime, into 2 into area of rectangle, area of right angle triangle, right? तो आप area of right angle find, therefore these two we have to transfer this side. So area of right angle triangle is equal to half into P into Q, and we know that half into P means what here? P is, see here P, we can say that this is length and Q is called as a breadth. Sorry, P is called in this rectangle, P is here length and PQ is a breadth. But if you see that P and Q, we can say that it is a product of sides forming द राइट एंगल, है ना? ये एक राइट एंगल का दो साइड का प्रोडक्ट है, मीन्स दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है. तो अब क्या बोला गया है? अगर इफ़ आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि इफ़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल फॉर्मिंग द राइट एंगल इज़ टेकन टू बी द बेस. अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड हमने अगर बेस कंसीडर किया, तो दूसरा साइड क्या कंसीडर करना पड़ेगा? हाइट. तो इसका मतलब है हाफ इंटू base into height. So this is the formula of area of triangle. Have you understood the concept? Now suppose there are two condition. अब दो कंडीशन में क्या दिया है? अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रायंगल के अंदर में अगर हमने पॉइंट M लिया, इफ़ इट इज़ इनसाइड, point M is inside the this segment R है, if and P is outside, then what will be the case? सो यहाँ पे क्या दिया है? जैसे ये ट्रायंगल PMR और PMQ, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है? इट मीन्स दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो ईच फॉर्मूला, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें PQR का फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल होता है, बट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मीन्स हाफ इंटू दिस MR इंटू PM, एंड एरिया ऑफ PMQ का क्या होगा? हाफ इंटू QM इंटू PM, ठीक है? बट यहाँ पे देखा जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे PM कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल दिया, ये दोनों को प्लस कर दे. बट QM प्लस MR, ये तो पूरा लेंथ है, QR है, तो हाफ इंटू QR इंटू PM, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल P, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट PQR का.
आई बात समझ में। अब अगर m जो है आउटसाइड रहा तो क्या होगा, आउटसाइड रहे तो ऑफकोर्स जो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर माइनस होगा किससे, ये स्मॉल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से। उसी तरह इसको हाफ इंटू बेस करो, उसमें भी कॉमन निकलेगा, फिर आपका सेम फॉर्मूला बनेगा। मीन्स अगर पॉइंट m को हमने ट्रायंगल के अंदर रखा या पॉइंट m को इसको बाहर रखा तो भी हमारा फॉर्मूला सेम मिलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, मे बी यू कॉन्सेप्ट दिस क्लियर हो गया आप लोग का। ओके, so now let us solve some question based on this formula, that is practice set 46 we are going to solve. I'm not writing question, you have to refer your textbook. So let us solve practice set 46. Okay, so what is the first question? क्या दिया हुआ है, ए पेज ऑफ कैलेंडर इज़ 45। यू नो आपके घर के सबके घर में कैलेंडर होता है। ओके, तो एक पेज है कैलेंडर का जिसकी लंबाई जो दी है ये 45 सेंटीमीटर दी है आपको, और ये विड्थ यानी ब्रेथ दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना। हमें पता है ये एक फिगर है, तो ये फिगर जो है कैलेंडर का जो फिगर होता है वो किसकी शेप में होता है, रेक्टेंगल का होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो आपको दिया है 45 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ कैलेंडर है और ये ब्रेथ ऑफ कैलेंडर दिया है, राइट। सो दैट वी हाउ टू राइट सॉल्यूशन, व्हाट यू विल राइट, लेंथ ऑफ कैलेंडर पेज कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। उसी तरह ब्रेथ, या तो यहाँ पे विड्थ यूज़ किया है वर्ड, सो यू कैन यूज विड्थ ऑल्सो, विड्थ ऑफ ए कैलेंडर पेज कितना दिया हुआ है आपको, हाउ मच सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। अब पता है, अब आप देख सकते हो तो पेज ऑफ कैलेंडर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम लिख सकते हैं हियर द पेज ऑफ जो कैलेंडर है इज रेक्टेंगुलर इन शेप, है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप में। इसका मतलब हम एरिया ऑफ कैलेंडर पेज क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ कैलेंडर पेज फाइंड करना मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ दिया गया है 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया आपका 26 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 45 एंड 26, सो मल्टीप्लाई हियर 45 26 6 5 is 30, 24 25 26 27, 0 5 2 is 10, 4 2 is 8 9, that is how much, 11. So how much, 1170 centimeter into centimeter square, or you can write 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या तो ये यूनिट आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। इन both the way you can write. So what you will write, hence the area of calendar page is 1170 centimeter. Have you understood? Okay, so now we are going to solve the next question, and with it next question is very easy, direct it is given to you. How, see, what is the area of a triangle with base आपको दिया हुआ and height. We know that base and height means area of triangle find करना है, तो बेस दिया हुआ हाइट दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो डायरेक्टली वी कैन राइट, सो हम लिख सकते हैं वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर बेस, बेस इज गिवन टू यू 4.8 and height is given as 3.6. So put the value of base 4.8 and height is 3.6. Now you can see that in the table of 2 this or this both are going, so we can cut anyway any one of them. 2 ones are 2 twos are 2 fours are, so 24.1 and 3.6. So multiply 24 into 36 multiplied 6 fours are 24, 6 twos are 12, 13 14 multiply 4 is a 12, that was 6 7. Okay, that is 4 6 8. Okay, what you were getting 864, but after decimal point one number, after decimal point one number, so two numbers, so we have to put after 2 1 2, so point will come here.
Okay, so what is the unit? Centimeter square, because both are given in centimeter. So we know centimeter is square centimeter, or you can write square centimeter also. So what you will write? Therefore the area of a given triangle is 8.64 centimeter, or you can write 8.64 square centimeter also. In any way you can write the unit. Okay, so now we are going to start the next question, that is question number 3. Okay, so let us see the question number 3. First we will read. So what is the next question? Question number 3. What is the value of a rectangular plot? मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो लेट अस ड्रॉ द फिगर. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है. अगर ये 75.5 मीटर लंबा है और ब्रेड तो जो है 30.5 मीटर ब्रॉड है, लंबा उसका चौड़ा है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. पर स्क्वायर मीटर मतलब यहाँ पे जो एक जो छोटा सा प्लॉट है, तो ये वाला जो है इसका रेट आपको दिया हुआ है कितना, 100 रुपीज़ है. तो पूरे का एरिया का कितना होगा वो आपको कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी. तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ कितना दिया हुआ आपका 75.5 सेंटीमीटर और मीटर दिया हुआ गया, मीटर स्क्वायर, इंटू ब्रेथ दिया हुआ आपको 30.5 मीटर. सो मल्टीप्लाई दिस वन. So 755 multiplied by 30, 305 is 25, 25, 27, and 35, 36, 37, 0, 0, 0. Then 5 3s are 15, 3 15, 16, so the 21, 22. That is कितना आएगा 5, 7, 2, 10, 23. So you will get 230,275. Okay, but you have to calculate the decimal point. So after decimal point one number, after 2 will get. So you need meter square. Okay, so ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर plot. Okay, now we have to find the cost. So now cost of plot we have to find is equal to per स्क्वायर मीन्स ये वाला पर स्क्वायर मीटर रेट जो हमको दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ प्लॉट. तो पर स्क्वायर कितना दिया 1000, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना किया था 230.275. सो मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट 230,275. हाउ मेनी ज़ीरो 1 2 3. सो ये 2 after 2 decimal point. Okay, so remove this 230,275. so 2,30,265 ये कॉस्ट ऑफ प्लॉट है. मतलब ये पूरे कॉस्ट की जो प्लॉट है, ये प्लॉट का जो कॉस्ट है वो कितना है 2,30,275. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? सो व्हाट यू विल राइट द आंसर, द कॉस्ट ऑफ द rectangular plot is rupees 2,30,275. Okay student, okay, have you understood? So now we are going to solve the fourth question in the next lecture video. Thank you.